ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے خلاف سوگن شپیاں میں جھڑپیں، فورسز اور مظاہرین کے بیچ پرتشدد جھڑپیں، کئی مظاہرین ہوئے زخمی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ آمد رفت کے لیے بحال، گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت، آج شام سے موسم میں بہتری کے امکانات، محکمہ موسمیات۔ اولمپکس میں جموں کشمیر اور ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیتنے کی خواہش، دلی میں مقیم کشمیری پنڈت 5ویں جماعت کی طالبہ نے گلمرگ میں ظاہر کی خواہش، گلمرگ میں قدرتی آئس سکیٹنگ رنگ پر کھیلنے پر کافی خوش۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز۔ ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزبان گوہر کچے آپ کی خدمت میں آج حاضر۔ اردو خبرنامے میں سب سے پہلے گرو گوبند سنگھ جی کی آج جینتی کے حوالے سے ملک بھر میں مختلف مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں گرو گوبند سنگھ کی جینتی کے حوالے سے دلی میں بھی ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی خطاب کر رہے ہیں۔ ہر بھارتی، ہر سکھ دوربین کے بجائے اپنی آنکھوں سے نارووال جا پائے گا اور بینا بھی جا کے گرودوارا دربار صاحب کے درشن کر پائے گا۔ اگست 1947 میں جو چوک ہوئی تھی، یہ اس کا پرایشچت ہے۔ ہمارے گرو کا سب سے مہتوپورن استھل صرف کچھ ہی کلومیٹر سے دور تھا، لیکن اسے بھی اپنے ساتھ نہیں لیا گیا۔ یہ کوریڈور اس نقصان کو کم کرنے کا ایک پرامانک پریاس ہے۔ ساتھیو، گرو گوبند سنگھ جی ہو یا پھر گرو نانک دیو جی، ہمارے ہر گرو نے نیائے کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبق دیا ہے۔ ان کے بتائے مارگ پر چلتے ہوئے آج کیندر سرکار 1984 میں شروع ہوئے انیائے کے دور کو نیائے تک پہنچانے میں جٹی ہے۔ دشکوں تک ماتاؤں نے، بہنوں نے، بیٹے بیٹیوں نے جتنے آنسو بہائے ہیں، انہیں پہنچنے کا کام، انہیں نیائے دلانے کا کام اب قانون کرے گا۔ ساتھیوں، آج کے اس پوتر دن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے دکھائے 11 سوتریہ مارگ پر چلنے کا پھر سے سنکلپ لینے کی ضرورت ہے۔ آج جب بھارت ایک سشکت راشٹر کے روپ میں स्थापित ہونے کی راہ پر چل پڑا ہے، تب بھارت کی بھاونا کو اور سشکت کرنے کی آوشکتا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ ہم سبھی گرو جی کے بتائے مارگ سے نئے بھارت کے اپنے سنکلپ کو اور مضبوط کریں گے۔ ایک بار پھر آپ سبھی کو پرکاش پرو کی بدھائی۔ آپ کے لیے نیا سال ڈھیروں خوشیاں لے کر کے آئیں، اسی کامنا کے ساتھ جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ گوبند سنگھ کے جینتی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ گرو گوبند سنگھ نے لوگوں کو سچ اور اچھائی کا راستہ دکھایا ہے، جس پر ہم سب کو چلنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی کشمیر کے کاٹ پورہ یاڑی پورہ کلگام میں گزشتہ شام فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ میں 2 ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے خلاف شوپیان کے غوثن علاقے میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سوگن شوپیان میں فورسز اور مظاہرین کے بیچ پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس دوران کئی مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ ملیٹنٹوں کی لاشوں کو جو ہی علاقے پہنچا گیا، تہاں نوجوانوں اور فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی، جس دوران نوجوانوں نے فورسز اہلکاروں پر سنگ کا استعمال کیا، جبکہ فورسز اہلکاروں نے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس دوران کافی دیر تک جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے سلسلے میں کئی مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں فدا حسین کے پاس۔ فدا، کیا کچھ تفصیلات ہے اس حوالے سے؟ جس طرح سے خبر آ رہی ہے کہ سوگن شوپیان میں فورسز اور مظاہرین کے بیچ جھڑپیں ہوئی ہے۔
देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से काठपुरा यारीपुरा में झड़प हुई है और उस झड़प में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें एक टॉप कमांडर जो कि अल बद्र से ताल्लुक रखते थे वो हलाक हुए। तो उसके बाद जो ही ये खबर इलाके में फैल गई, चाहे वो जिला शोपियान हो या जिला कुलगाम हो, उसके आसपास जितने भी गांव हैं, वहां के लोग जो है वो उस एनकाउंटर साइट पे जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रात का वक्त था और रात के वक्त काफी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा आम लोगों को, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ जहां मुजाहिरीन थे वो वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि जो वहां पर जो मिलिटेंट है वो वहां से भागने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगरचे मिलिटेंटों ने कोशिश भी की भागने की, लेकिन पहले ही वहां पर जो फौज सीआरपीएफ और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने वहां पर चप्पे चप्पे पर नाके लगाए थे और उन्होंने चारों ओर उस इलाके को घेरे में ले रखा था जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। और उसके बाद अगरचे रात के वक्त तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वहां पर जो टॉप कमांडर अल बद्र का है वो वहां से भागने में कामयाब हुए, लेकिन रात देर गए उसके बाद उसकी शिनाख्त हुई और उनके घर वालों को बुलाया गया और बाद में उनको आबाई इलाका सुगन पहुंचाया गया। जो ही आज सुबह सुगन शोपियान उसको देखने के लिए जो आम लोग हैं वो वहां पर जा रहे थे, तो उसी बीच फौज की जो वहां पे गश्ती पार्टी है वो वहां से गुजर रही थी। उसके बाद वहां पर मुजाहिरीन और फौज के बीच झड़पें हुई, कई सारे मुजाहिरीन जो है वो जख्मी हुए जिनको अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो हमें खबर मिल रही है कि वो खतरे से बाहर ही बताए जाते हैं, लेकिन इलाके में अभी भी काफी जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। और उस बीच उन चीजों को देखते हुए पहले ही जिला इंतजामिया ने मोबाइल इंटरनेट को डाउन किया है। कल शाम से ही दोनों जिलों में, चाहे वो जिला शोपियान हो या जिला कुलगाम हो, लेकिन इलाके में अभी भी हालात जो है वो काबू में नहीं है। हालात काफी कशीदा हो चुके हैं वहां पर, क्योंकि अभी भी उनके आखिरी रसूमात नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वहां पर आम लोग जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि कई हसास मकामात पर नाके पहले ही लगाए गए हैं ताकि जो अमन कानून है उसको बाहर रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोग जो है वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जहां पर चलिए बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन जो तफसीलात फराहम कर रहे थे जिस तरह से सोगन शोपियान में फोर्सेज और मिलिटेंट फोर्सेज और नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई है, जो दौरान कई मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। गुज़श्ता शाम कठपुरा यारीपुरा कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में अल बद्र नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता आला कमांडर जीनतुल इस्लाम और उसका साथी समेत हलाक हुए हैं। और आज जो ही उनकी लाशों को आबाई घर लाया गया था, वहां फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई है, जिस दौरान मुजाहिरीन ने फोर्सेज एहलकारों पर संग का इस्तेमाल किया, जबकि फोर्सेज एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर है। साबिक आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शाह फैसल के हालिया इस्तीफा पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि शाह फैसल एक काबिल और बाइतमाद ऑफिसर थे, जिन्होंने रियासत के लोगों को बहबूदी के लिए अपनी खिदमत इंतहाई लगन और तनदेही से अंजाम दी। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर शाह फैसल अपनी सरकारी खिदमत जारी रखते, वो समाज की बेहतरी के लिए और ज्यादा अहम इकदाम अंजाम देते। गवर्नर ने कहा कि डॉक्टर शाह फैसल सियासत में आने के बगैर भी लोगों की बेहतरी के लिए आला खिदमत अंजाम दे सकते थे। उन्होंने कहा कि शाह फैसल को नौजवानों के ख्वाहिशात और उनकी तमन्नाएं जानने के लिए उनसे राबिता करना होगा और उनके मुश्किलात दूर करने और शिकायत के अजाले के लिए उन्हें एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश करनी होगी। देखिए, अभी तो उनका रेजिग्नेशन हुआ नहीं, वो सरकारी अफसर है, अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा और अभी उनकी डायरेक्शन भी तय नहीं है, अभी वो तय नहीं कर पा रहे क्या। जब वो सेटल कर जाएंगे क्या करेंगे तब। वैसे मेरा जरूरी नहीं है उनकी बातों का जवाब देना, ये आप दें, लोग दें, पॉलिटिकल लोग दें। आई विश हिम वेल। अच्छा था कि वो सरकारी नौकरी में थे, उस ड्यूटी को पूरा करते, जिसकी शपथ ली थी उसको पूरा करते। जो अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा वो आगे क्या करेगा इसका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी ड्यूटी थी, उनको बहुत सम्मान मिला था, सरकारी काम उनके पास था करने को, वो करते तो बहुत अच्छा। देखिए, अभी तो उनका
ریاستی گورنر ستیپال ملک کا کہنا ہے کہ اگر شاہ فیصل جس عہدے پر فائز تھے انہیں اس عہدے پر ہی فائز رہنا چاہے تاکہ وہ اس پر زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کر سکتے۔ پی ڈی پی کے لیڈر سید اقبال قاسمی نے پارٹی چھوڑنے کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیگر جماعتوں کے چند لیڈران کی جانب سے علاقے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے پی ڈی پی چھوڑ کر دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے، جو کہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس حوالے سے انہیں کوئی بھی فیصلہ لینا ہوگا تو وہ کارکنوں سے صلاح مشورہ کر کے فیصلہ لیں گے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے نہیں، میں کہوں گا 1 مہینے یا 1.5 مہینے سے کچھ جو شرپسند لوگ ہیں وہ ایک پارٹی سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک وہاں افواہ ریومر پھیلائی ہے کہ اقبال قاسمی نے نیشنل کانفرنس جوائن کر لیا ہے یا بخاری صاحب کو جوائن کر لیا ہے۔ میں اپنی تمام عوام کو اس میسج کے ذریعے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وہ لوگ جنہوں نے مجھے 2014 میں اتنی بڑی عزت بخشی اور میں جب آیا تو ان لوگوں نے مجھے پلکوں پہ بٹھایا، آج زندگی میں اگر کوئی فیصلہ لینا ہو تو میں ان لوگوں سے پوچھ کے لوں گا۔ آج یہ جو لوگ ہیں، اگر میں ایک شادی میں گیا تھا تو وہاں میرا بخاری صاحب سے میں نے سلام کیا، انہوں نے وہ بھی فوٹو اٹھا کے پورے واٹس ایپ پہ چڑھا دیا کہ اقبال قاسمی نے این سی جوائن کر لیا۔ میں اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا جس دن اقبال قاسمی نے کوئی جگہ جوائن کرنی ہوگی تو سن کو شادی میں شیک ہینڈ کر کے نہیں کرنی ہوگی، پھر دنیا کو پتہ چلے گا، اپنی عوام کو پتہ چلے گا۔ میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز کو سٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں کہ میں نہ کہیں کوئی جوائن کیا اور نہ کوئی جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ سن کو جموں سری نگر قومی شاہراہ جواد ٹنل کے آس پاس برفباری اور بارشوں کی وجہ سے آج دوسرے روز شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت کو بحال کیا گیا ہے۔ یہ دوران درماندہ گاڑیوں کو سری نگر کی اور چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ادھر انتظامیہ کی جانب سے شاہراہ پر سفر کرنے والوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سری نگر جموں شاہراہ پر سفر کرنے سے پہلے وہ ٹریفک حکام سے رابطہ کرے تاکہ انہیں سفر کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آج شام سے موسم میں بہتری کے امکانات ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو آج دوسرے روز بحال کیا گیا ہے، جس دوران گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے شاہراہ پر سفر کرنے والوں کو ہدایت جاری کیے گئے ہیں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے پہلے ٹریفک حکام سے رابطہ کیا جائے تاکہ انہیں سفر کرنے کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آج شام سے موسم میں بہتری کے امکانات ہے۔ اس خبر پہ مزید تفصیلات کے لیے سیدھا بنہال چلتے ہیں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ ہے مدثر کیا کچھ تازہ اپڈیٹ ہیں اس حوالے سے؟ آج جو ٹریفک ہے بحال کیا گیا اور جموں سے سری نگر کی اور گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، مزید اپڈیٹ آپ سے جانیں گے۔ جی بالکل، کل دوپہر کے بعد برفباری کے سلسلے میں ٹریفک حکام کی جانب سے قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت بند کی گئی تھی، تاہم آج صبح سے ہی قومی شاہراہ پر برف جو ہے وہ ہٹائی گئی اور قومی شاہراہ کو گاڑیوں کے لیے بحال کیا گیا، جس دوران سب سے پہلے قومی شاہراہ پر درماندہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ملی اور گاڑیوں کو رامبن بانیہال سے کشمیر کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ وہی حکام کی نظریں جو ہے وہ قومی شاہراہ پر ٹکی ہے اور کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران ٹریفک حکام کی جانب سے ٹریفک کنٹرول یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ لوگ سفر کرنے سے پہلے موسم کے حوالے سے شاہراہ کی حالت کو جانیں تاکہ ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہو۔ مدثر آپ سے جانیں گے کہ اس وقت اگر ہم موسم کی بات کریں گے تو رامبن بانیہال یا قاضی گنڈ جو علاقے ہیں وہاں پر کس طرح کا موسم ہے اور جو درماندہ مسافر یا ڈرائیور صاحبان ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، کیونکہ کل جس طرح سے جو قومی شاہراہ بند ہوا ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی
कल दोपहर के बाद ही जब बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो कल जो है जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी और दोपहर के बाद ही बंद किया गया था। लेकिन अगर आज मौसम की बात करेंगे तो मौसम काफी साजगार है। टनल के इस पार जम्मू डिवीजन बानहाल रामबन की बात करेंगे तो धूप जो है वो निकली हुई है, लेकिन टनल के उस पार काजीगुंड या फिर कौमी सड़क के साथ साथ अगर देखा जाए टनल के पार जो है वो धूप नहीं निकले, लेकिन हुकाम ने जी तोड़ कोशिशें करके जो है 1.5 फुट बर्फ को कौमी शाहराह से हटाकर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया। जहां तक गाड़ियों के ड्राइवरान का ताल्लुक है तो काफी ज्यादा मुश्किलात जो है उनको आते हैं। गाड़ियां अक्सर जो है उन मकामात पर खड़ी की जाती हैं जहां पर उनको खाने पीने की चीजों की काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अहमद आपका। ये थे मुदस्सिर बानिहाल से जो तफसीलात फराहम करे थे। जिस तरह से आज दूसरे रोज आज गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है, जिस दौरान दरमांदा गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुतासर रहने की वजह से उधमपुर में दरमांदा माल बरदार ड्राइवर और मुसाफिरों का कहना है कि कौमी शाहराह बंद होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि इंतजामिया की जानिब से दरमांदा मुसाफिरों और माल बरदार ड्राइवरों के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि कौमी शाहराह बंद होने की सूरत में दरमांदा मुसाफिरों और ड्राइवरों के लिए खाने पीने और रहने का कोई इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू से आया क्यों रुका, इस वजह से कि रोड उधर बर्फबारी है, रोड बंद है। मैं इस वक्त उधमपुर में कल पहुंचा, इधर रोड इस वजह से बंद है कि गाड़ी उधर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम छोड़ेंगे। अगर ये बारिश बंद हो जाएगा हम भी छोड़ेंगे यहाँ से। रात को 9 बजे पहुंचा इधर। आगे तो या बर्फबारी है तो पता नहीं है क्यों गाड़ी रोका, क्योंकि उधर की गाड़ियां आया थोड़ा तो पता नहीं है। रोड की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से गाड़ी रुका है। चंडीगढ़ से आ रहे थे श्रीनगर के लिए, मेडिसिन लोड है हमारी गाड़ी में, हमको कल से रोका गया। यहाँ पे हमको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बाथरूम की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, दुकानें भी उतनी नजदीक नहीं है कि कोई राशन का सामान ला सके। हमारी गुजारिश हुकाम से ये है कि जल्दी से जल्दी ये रोड साफ हो जाए ताकि हमको यहाँ से शिफ्ट करके श्रीनगर ले जाए अपनी माल। करीब 12 बजे से 11 बजे के बाद वहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है जो टनल पे, उसकी वजह से जो लाइट मोटर व्हीकल है वो भी रोक दी गई हैं और हैवी व्हीकल्स जो हैं उसकी भी आज जो मूवमेंट है वो कैंसिल कर दी गई। पीर पंजाल के आर पार बालाई और मैदानी इलाकों में बारिशों और हल्की बर्फबारी की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासर हुई, वहीं बारिशों की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि लोग लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों का मानना है कि बारिश और बर्फबारी की भी जरूरत और अहमियत है। यहाँ पे इतनी सर्दी है कि कहने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लोगों ने 3-3, 4-4 स्वेटर डाली हैं, जैकेट डाली हुई हैं और अभी भी पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और फिर भी मार्केट में रश बहुत है और लोग इस वक्त मूंगफली चिप्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, चाय और जगह जगह आग भी जलाई हुई है। और मैंने खुद देखो अभी भी ग्लोव्स पहने हुए हैं और जैकेट डाली हुई है, स्वेटर डाली हुई है, बहुत सर्दी है यहाँ पे। आज तो पुंछ में बड़ी जोरों की सर्दी पड़ रही है, लगता है कि सर्दी अपनी जवानी पे है। तो हमारे आगे पीछे पुंछ के शहर में पहाड़ों पे काफी स्नोफॉल हो गया हुआ है और आप देख रहे हैं कि बाजारों में, गली कूचों में और हर बाजारों के चौराहों पे, नुक्कड़ों पे सब लोग आग जला के आग सेक रहे हैं। कोई गर्म पानी की बोतल लेके बैठा हुआ है, कोई कांगड़ी लेके बैठा हुआ है। तो एक बात है कि सर्दी का अपना ही एक, इस मौसम का एक अपना ही मजा होता है और ये जो बर्फ पड़ी है ये भी एक त्योहार की तरह माना जाता है। और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पुंछ के लोग अपने काम काज में लगे हुए हैं। इस सर्दी में भी, इस कड़कती, इस ठिठुरती सर्दी में भी वो अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं और मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं। और दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडित घराने से ताल्लुक रखने वाली 5वीं जमात की तालिबा और आइस स्केटिंग खिलाड़ी लोवानिया गुलमर्ग में मौजूद आइस स्केटिंग रिंग पर पहली मरतबा खेलने आ चुकी है।
लवानिया ने कहा कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि गुलमर्ग में आइस स्केटिंग रिंग मौजूद है। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो गुलमर्ग आने और खासकर वादी कश्मीर में आने को उन्होंने तरजीह दी है। लवानिया गुलमर्ग में कुदरती आइस रिंग पर खेलने पर काफी खुश है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज तक वो मसनूई बर्फ पर आइस स्केटिंग करती रही, ताहम आज उन्हें गुलमर्ग में कुदरती जमे हुए बर्फ पर आइस स्केटिंग करने में कुछ अलग ही मजा आ रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो ओलंपिक्स में वो मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए सोने का तमगा जीत कर लाए। मैं पढ़ती हूँ, मैं आज स्कूल शालम में है जो गुरुग्राम में है, लेकिन मैं कश्मीरी गर्ल हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी एक नेचुरल रिंक है तो मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस पे भी कर सकती हूँ। और अब मेरा एम है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इंडिया और JNK के लिए जीतना। टेक्नोलॉजी में पैदर पे तब्दीलियों ने वीडियो गेम्स के ऐसे दौर खोले हैं जहां एक तरफ बहुत सारे फवायद नजर आ रहे हैं, वहीं बहुत सारे नुकसानात ने भी सर उभारा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने नौजवानों और बच्चों के लिए वीडियो गेम्स को इंतहाई सस्ता और आसान कर दिया है। ऐसे ही लाखों गेम्स में PUBG गेम से हर एक मुतासिर हो रहा है। बच्चे क्या नौजवान तबका भी दिन रात बेशतर वक्त इसी गेम में खेलने में सरफ कर रहे हैं। ये गेम खेलने वालों की सेहत के लिए मुज़र रसा है। गेम बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस PUBG वीडियो गेम में मौजूद ऐसी मशीन की रोशनी से निकलने वाली शाएं कसरत से गेम खेलने वालों में मिर्गी का आर्जा पैदा कर देती है। और ये भी खबरदार किया कि ये और इससे जिसे वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलने से हाथों में राशे पैदा हो जाता है। ये इंतबाह भी दिया है कि गेम्स में बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने की वजह से हड्डियां और अजलात की तकलीफ लाहक हो जाती है, जबकि मोबाइल पर उंगलियों को मुसलसल हरकत की वजह से अबहम वाली उंगली को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस सिलसिले में हमारे साथी आशीष कोहली ने डॉक्टर से क्या कुछ कहा है, इस हवाले से आइए दिखाते हैं। ये जो गेम है PUBG, ये मोस्टली यहाँ PUBG तो बस एक गेम है, बट बाकी भी इंटरनेट एक्टिविटीज में जो आज का यूथ है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सिर्फ PUBG के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे कि एक तरह से इंटरनेट डिपेंडेंस हो रही है लोगों को। तो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत एक छोटी एज में ही आजकल शुरू हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक्सेस सबके पास है, नेट की एक्सेस सबके पास है। आप देखिए तो एक स्क्रीन डिपेंडेंसी, एक टाइम, कुछ गाइडलाइंस भी इसकी हैं, हालांकि ये कोई कंक्लूसिव गाइडलाइंस नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा है एज का, तो उसको तो मोबाइल से या स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अगर वो 1.5 साल से 2 साल के बीच है तो अराउंड 1 घंटे से कम ही टाइम देना चाहिए, या 2 से 5 साल का बच्चा है मैक्सिमम 1-1.25 घंटा। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो हैं सब वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो बच्चों के हाथ में बच्चों से अपने बिजी रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा बच्चे स्क्रीन डिपेंडेंट हो रहे हैं। बच्चों से अगर मोबाइल वापस लिया जाए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं, वो अपना सर टकराएंगे या चिल्लाएंगे, रोएंगे कि हमें मोबाइल दिया जाए। ये तो होगी बच्चों की बात। बाकी अगर आप स्टडीज़ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 18 से 25 साल के जो एज ग्रुप में उसमें अराउंड 5 to 6% जो इंडियन यूथ है वो कहा जाता है कि वो एडिक्ट है इंटरनेट के लिए, और जो 24% है वो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज तक पहुंच गए हैं। तो इवन कल एडवांसमेंट की वजह से और अपने बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से हम बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको मिलना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी प्लेफुल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हैं, उससे बच्चा कुछ सीखेगा। आप मोबाइल से जितना हो सके उतना बच्चों को दूर रखिए। हालांकि टेक्नोलॉजी की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से आजकल आप देखें तो ये निमहैंस बेंगलोर में जो एक बहुत हाई साइकेट्रिक सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने एक सर्विस भी शुरू की है, दैट सर्विसेज फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। वो सिखाते हैं वहाँ पे कि किस तरह से हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए वो कम से कम मोबाइल बच्चों को दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे प्लेफुल एक्टिविटीज़ में लगवाएं। और जो कि ज़्यादा बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जैसे ये PUBG वाला एज ग्रुप है, उसमें पेरेंट्स अब उनसे मोबाइल छीन तो नहीं सकते, लेकिन उसमें उन लोगों की खुद एक काउंसलिंग उनके साथ एक बहुत ज़रूरी है। उन पेशेंट्स के साथ उनको ये समझना होगा कि ये गेम उनके लिए जो है हानिकारक है, और जब ऐसा वो करेंगे उनको खुद एक क्विट डेट डिसाइड करना है कि आज से हमें ये क्विट करना है।
حالانکہ ان کو بہت زیادہ کمپلشن ہوگا بار بار اسے کھیلنے کا، بٹ اس کے لیے کچھ کاؤنسلنگ ہے، کچھ بیہیویئرل ٹیکنیکس ہے. اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان گوہر کچھے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.